So we have Dr. Tara Malhotra with us. Okay, ma'am. So this is a very nice book, like Mindful Miracles. जब मैंने ये title पढ़ा, so I was like, wow, like क्या होगा इसके अंदर एक होता है ना कि कुछ तो है. I should read it. So, ma'am, I just first of all I want to know कि why Mindful Miracles? Why you chose this title? देखो, जब हम आज की डेट में बात करते हैं रिलेशनशिप की, हेल्थ की, मनी की या किसी भी एस्पेक्ट की, तो ब्लॉकेजेस या फिर जो ऑब्स्टिकल्स लोगों को आ रही है वो बढ़ती जा रही हैं एज कम्पेयर टू व्हेन वी यूज्ड टू मीट पीपल 15 इयर्स बैक। तो जब मैंने इस एनर्जी को या इस चीज़ को जब चैनलाइज करने की कोशिश करा, तो ये समझ में आया ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि ये सब हमारे माइंड से जनरेट हो रहा है। और अगर हम केयरफुल हैं, अगर हम माइंडफुल हैं, तो हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मनी हो। तो इसीलिए अगर माइंडफुलनेस है, एनर्जी चैनल्ड है, तो मिरेकल्स के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के किंग बन के उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है माइंडफुल मिरेकल्स। ओके, सो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, इट इज अबाउट द, वो कहते हैं ना मैनिफेस्ट, कि इफ यू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो मैम, आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड एंड आस्क यू कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मिरेकल या ऐसी कौन सी चीज ने या कोई सिचुएशन ने आपको इंस्पायर किया टू राइट दिस बुक? I am a psychic and a clairvoyant from my childhood. From I was 5 years of age when I started getting these dreams and visions where I could see what is going to happen in the future. Wow. And उसको धीरे धीरे जैसे आप एज के साथ बड़े होते हो, I started channelizing and I tried to find out that what is where is this information coming to me from, and that is how my journey started into it. But what inspired me to write this book was during the COVID times, the Corona times, we saw a lot of people getting into anxiety, depression, getting into a mode where they are not able to fight the disease. Understood कि disease है, there is an issue, but at the same time पॉजिटिविटी वॉज नीडेड, राइट डायरेक्शन टू योर एनर्जी वॉज नीडेड। सो अगर हम उस एनर्जी को माइंडफुली आगे बढ़ाते तो शायद एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंड दैट वॉज द टाइम when I started taking EFT sessions also online for everybody. It was a Facebook live, Insta live, YouTube live for all the people, क्योंकि हम सब लॉक्ड अप थे, बाहर जा नहीं सकते थे. So the sessions were conducted online to release their emotional blockages, to release their emotional vent out. So that is when I decided that I should write a book, that why we are not able to manifest what we want to desire. And health, of course, was a part of it when we were stuck with Corona. So that is when I decided, and that is what inspired me to write it. Okay, so the hard times inspired you to write a Mindful Miracles book so that you can inspire all of the people in. So ma'am, can I ask you, like, for which generation you are targeting with this book? Is it like a youth generation or any other, like everyone? So what you're targeting, the audience? See, the best part about this book is actually that it is for everybody, from a child to an adult. I will just give you a small example. I have a case. This is the actual case that I will discuss with you. I had a client who was doing very good in work. I mean, his business was flourishing and he was doing good in work, but at the same time, he was still facing issues when it come to managing the money, or when it came to spending money. Okay. एंड ही केम टू मी कि मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ, बट मैं ना उसको एंजॉय कर पाता हूँ और ना मैं उसको सेव कर पाता हूँ, एंड इट गेट्स वेस्टेड. सो मैंने जब उसको स्टडी किया, उस केस को, उससे बात करी,
Then I found out that this issue is coming from his childhood. When he was a small child, his parents were very strict and they did not have enough money. तो वो घर में बोलते हैं ना, बचत करो, पैसे मत खर्चो, ऑल्टरनेटिव चीजें यूज करो. So that was what his mind or his energy or his subconscious mind was full of, that pinch of money. So ideally, rather doing a healing for him on money, I did a healing on inner child, to release those blocked energies. तो वो energies कहाँ से आई? उसकी childhood से आई ना. तो इसीलिए ये बुक सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये all genre of people के लिए है. It is for everybody to understand and realize कि जब हम ऐसी statements, जब हम affirmations, ऐसी affirmations अपनी life में use करते हैं, so it creates a block not just for adults but from the childhood. जैसे कई parents बहुत strict होते हैं, they're always scolding their children. तो जब वो बड़े होते हैं, they start having those relationship blocks. तो वो आ कहाँ से रहे हैं? रिलेशनशिप ब्लॉक्स उनको बड़े होके नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो उनके चाइल्डहुड से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वेयर दे वर नॉट एबल टू गेट द वार्मथ और द एनर्जी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो दिस बुक एक्चुअली इज hinting at those energies also, that how and where the blocks are formed and how you can get rid of them now. Okay. So it is basically जैसा बोलते हैं कि जो आप अपने आसपास सुनते हैं या जैसा आप एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, उसी तरह का सामने वाला इंसान होता है. इसीलिए बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चों को, so that they become grown up good individuals, Absolutely. secure individuals. आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो. अगर एक घर है जहाँ पे बहुत क्ले कलेश होता है और बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, और उसके साथ वाला घर है जहाँ पे पाठ होता है, पूजा होता है, द फैमिली इज वेरी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो अगर आप उस घर में पौधे भी लगाओगे, तो जिस घर में क्लेह कलेश होता है ना, वहाँ के पौधों में फूल नहीं आते, वहाँ के पौधे मुरझा जाते हैं. और जो साथ वाला घर है, वही सेम एनवायरनमेंट है, वही सेम मिट्टी है, वही सेम पौधे हैं, बट वहाँ पे वो फ्लरिश करते हैं. सो इट इज द वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो नटशेल में बेसिकली क्या है? हमारी एनर्जी, हमारी माइंडफुलनेस, और हम उसको कैसे चैनल कर रहे हैं. Okay, that is so nice, ma'am, and so insightful. And I would definitely love to read this book. Okay, just one last question, ma'am. जब भी कुछ होता है, आप कोई भी काम करने जाते हैं, तो you sometimes face that difficulties, problems, कुछ ना कुछ होता है. तो आपको ये जब आप बुक लिख रहे थे, तो ऐसी कोई difficulty, ऐसी कोई problem आई आपको, या आपने कोई भी ऐसी circumstance face की हो जिसने शायद आपको रोका भी हो कि शायद मैं लिख रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ, self doubts, anything? I think I have been very blessed that way. Okay. क्योंकि already I had the idea in my mind, and since during this COVID time, I think I also went through a very bad time. So I had the idea, and it was just that उसको हमें एक book की form में manifest करना था. So I don't think I found any obstacles or hindrances in writing this book. I was blessed that way. Okay, that's so nice, because you were writing such a miraculous book, I would say. So thank you so much, ma'am. It was so nice talking to you. Same here. Thank you. नमस्कार, हाउ यू? मैं बहुत अच्छी हूँ दिनेश जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. सो वर्ल्ड बुक फेयर में आज आप हैं और आज आपकी बुक आपके सामने है, तो आपका कैसा फीलिंग है? और अभी आपका फोटोशूट भी हुआ है कुछ समय पहले, और उससे पहले आपका बुक लॉन्च भी हुआ था वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में. सो ये जो सारा जो प्रोसेस हुआ है एज एन ऑथर आपके साथ, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मेरी बुक माइंडफुल मिरेकल्स एनर्जी और माइंड पे फोकस करती है. तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शॉर्ट में ये कहूँगी कि मेरा माइंड बिल्कुल अलाइन था पूरे प्रोसेस के साथ, और एनर्जी जो थी इट वाज वेरी लाइट एंड हैप्पी. तो अमेलगमेशन जो उसका हुआ, जो आउटपुट उसका निकला, वो एक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट के साथ एलाइटमेंट का भी निकला. तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड ऑल थैंक्स टू पेन डाउन प्रेस. थैंक यू सो मच. सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट एंड अलाइनमेंट. सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल शब्दों में बताया ये.
और बहुत अच्छे शब्द जानने को मिले मुझे आज। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पेन डाउन प्रेस के साथ एक्सपीरियंस था, जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे बुक पब्लिशिंग या राइटिंग करनी है, वहाँ से लेकर के आज आप वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी बुक को अपने हाथों में देख रहे हैं और आपके जो रीडर्स हैं वो उस बुक को बाय कर रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, तो वो जो कैसा एक्सपीरियंस रहा पेन डाउन प्रेस के साथ, दिनेश वर्मा के साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि दिनेश जी सिर्फ एक ओनर नहीं है पेन डाउन प्रेस के। आई थिंक ही इज अ मेंटर एंड अ गाइड। और कभी कभी थोड़ा सा जहाँ पे चीजें इधर उधर हो रही होती हैं तो वो स्ट्रिक्टली भी उस चीज को बताते हैं, विच आई थिंक इज अ गुड क्वालिटी। बिकॉज आपको जो एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड का, अगर आप उसको हमें एज ऑथर नहीं बताएंगे तो शायद हम उसको अपनी बुक को उतने अच्छे से नहीं पोजीशन कर पाएंगे जितने अच्छे से हम अब कर पा रहे हैं। तो आई थिंक द क्रेडिट goes to you, the Pen Down Press, and us as a team. That's great. Thank you so much. So अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बुक आपने लिखी है ये किस तरह का रिवॉल्यूशन, किस तरह की क्रांति हमारे देश में लाने वाली है? बुक में एक टाइटल है कि द करेंसी ऑफ लाइफ इज एनर्जी, एनर्जी इज द करेंसी ऑफ लाइफ। तो अगर हम उसकी बात करें तो पैसा तो करेंसी है, बट पैसा हमें आउटवर्ड खुशियाँ देता है, जो मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस या मटीरियलिस्टिक गेन्स की अगर हम बात करें। बट अगर हमें इनवर्ड हैप्पीनेस चाहिए या इनवर्ड एनलाइटनमेंट चाहिए या इनवर्ड सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसकी करेंसी मनी है। तो अगर हम इस एनर्जी है तो अगर हम उस एनर्जी को भी समझेंगे तो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज, नॉट ओनली फॉर एडल्ट्स बट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द एज वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस प्लैनेट। दैट्स ग्रेट। सो एनर्जी का जो आप एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं बेसिकली, और ये बड़ा ब्यूटीफुल चीज़ बताई आपने कि एनर्जी इज़ द करेंसी। अभी तक मेरे माइंड में भी ये जो मनी है इसी को लेके था कि करेंसी है, बट एक्चुअली में मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ जिस तरह से आपने बताया, और पहले भी आपसे बातचीत हुई लेखक मंच पर, और जब आपकी बुक लॉन्च हुआ था वहाँ भी आपने स्पीच दी थी अपनी बुक के बारे में। तो एनर्जी इज़ द रियल करेंसी ऑफ लाइफ बेसिकली, क्योंकि अगर एनर्जी है मेरे पास तभी मैं पैसा कमा सकता हूँ। विदाउट एनर्जी इवन मैं पैसा भी उतने तौर पे नहीं कमा पाऊंगा। सो वंडरफुल। सो क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को आप इस वर्ल्ड बुक फेयर के प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल, मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जैसे हमने कोविड टाइम्स में या कोरोना टाइम्स में देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड, एंजाइटी, फियर, सबसे बड़ी बात थी फियर, एक एनर्जी जो कि फियर की एनर्जी प्रिवेल कर रही थी थ्रू आउट, नॉट इवन इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर हम इस एनर्जी जो हमारी करेंसी है उस पर फोकस करें तो शायद वी वुड हैव डेल्ट विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे। बट आगे आने वाली सिचुएशंस को, आगे आने वाले जनरेशन को अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस देखने हैं या अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करनी है, उसके लिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, एनर्जी कॉन्सेप्ट को शुरू से ही अपने लाइफ में लेके चलेंगे तो शायद वी विल बिकम अ बेटर ह्यूमन एंड वी विल बी एबल टू चैनल अवर लाइफ इन शुरू से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्कूल से अगर हम इसको कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले भी गुरुकुल का कॉन्सेप्ट होता था। वो गुरुकुल आपको क्या करता था, सिर्फ आपको वो किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि अपने जीवन को चलाने की आगे आध्यात्मिक पढ़ाई भी करवाता था। और जिस वजह से जो ये आजकल हम इतने सारे ट्रॉमाज या इनर चाइल्ड ट्रॉमाज या इनर चाइल्ड इश्यूज को डील कर रहे हैं, वो सब पहले नहीं हुआ करते थे, इस लेवल पे नहीं हुआ करते थे जो आजकल हम स्कूल्स में, या मेरे भी अपने छोटे बच्चे हैं जिस तरीके से वो चीज़ों को डील करते हैं वो सब नहीं था। तो अगर हम उसी गुरुकुल वाले कॉन्सेप्ट, आध्यात्मिक वाले कॉन्सेप्ट को, एनर्जी कॉन्सेप्ट को बचपन से ही इनकलकेट करेंगे बच्चों के अंदर तो शायद बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस को वो बेटर फॉर्म में डील कर सकते हैं। सो वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। मेरी आशा है, विश है कि आपकी जो बुक है वो आपको लॉट्स ऑफ सक्सेस लेके आए। अभी जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप मीडिया में छाए रहते हैं और हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल पर आपका शो आता रहता है, और आपकी एक, आज ही मुझे पता चला, एक डार्क मिस्ट्री नाम से आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है कुछ डिस्कवरी चैनल पर, आई थिंक। करेक्ट, अमेज़न प्राइम पर। तो इसी तरह से आपकी और भी सीरीज बनती रहें और आप जो आप मैसेज देना चाहते हैं और जो भी आपका सपना है इस बुक से वो पूरा हो, और जो रिवॉल्यूशन हम देखना चाहते हैं भारत में वो वाकई में पॉसिबल हो पाए इस किताब से। तो मेरी ये विश है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। यू टू, थैंक यू।